मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे परिवारों में वो सचमुच चल रहा है। I can see the glory of God is dwelling in the house of God. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की जो महिमा है वो सचमुच परमेश्वर के भवन में मौजूद है। The light is shining in the darkness. सचमुच वो जो ज्योति है अंधकार में चमक रही है। You know, Ritu, when light shine in our darkness, हालेलुया। जब सचमुच ज्योति अंधकार में चमकती है, the Holy Spirit will come and dwell in our life. पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में ठहर जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। To build our relationship strong. ताकि हमारे रिश्तों को और मजबूत बना दे। Praise the Lord. Praise the Lord। Are you hearing the word of क्या God? आप सचमुच परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं? Praise the Lord. हालेलुया। Are you hungry for it? क्या सचमुच आप भूखे हैं परमेश्वर के वचनों के लिए? Are you thirsty for His क्या righteousness? आप प्यासे हैं उनकी धार्मिकता के लिए? Surely today you are going to be full. सचमुच आज आप तृप्त किए जाएंगे। Because the Bible says, "Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, वो तृप्त किए जाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now, God is going to restore the relationship. ये बहुत जरूरी है समझना कि परमेश्वर रिश्तों को बना देंगे। The Lord is going to restore each and everyone's relationship. हर एक रिश्ते जो आपस में बिगड़े हैं प्रभु उसे बना देंगे। Now, relationship between the Lord Jesus and His church are going to be restored. यहाँ पे जो रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ और उसकी कलीसिया के साथ वो बन जाएगी। हालेलुया। The relationship between bride and bridegroom will be restored. सचमुच दुल्हन और दूल्हे का जो रिश्ता है वो स्थापित हो जाएगा। The relationship between the kingdom of heaven and the church of the living God is going to be restored. जो रिश्ता है स्वर्ग से, स्वर्ग के राज्य से और परमेश्वर की कलीसिया से वो एक हो जाएगा। Amen. आमीन। When this restoration is taking place, जब ये पुनर्स्थापित का कार्य होता है, automatically अपने आप those who are in the church, जो कलीसिया में मौजूद they हैं, are going to receive miracles. वो सचमुच चमत्कारों को पाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Say everybody, we are in the times of restoration. आप कहिए कि हम उस समय पे हैं जहाँ पे हमारे रिश्ते पुनर्स्थापित किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। A special anointing is going to release today. आज एक खास अभिषेक आपके जीवन में दिया जाएगा। This evening, God is going to give you a special anointing so that your relationship is going to be restored. आज की शाम परमेश्वर एक खास आपको अभिषेक देगा ताकि आपके रिश्ते वो सचमुच स्थापित किए जाएं। And many families are going to see the revelations and plus the salvation from the Lord. बहुत सारे परिवार जो हैं वो परमेश्वर का प्रकाशन और सचमुच उद्धार को देखेंगे। Now restoration will come between husband and wife, पुनर्स्थापित की जो रिश्ते हैं वो पति पत्नी के बीच में आएंगी, father and son and daughter, पिता पुत्र और पुत्री के बीच में आएगी, mother, son and daughter, माता पुत्र और पुत्री के बीच में आएंगी, brother and sister. भाई बहन के बीच में आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Husband and wife will have पति a good पत्नी के relationship. बीच में एक अच्छा संबंध होगा। The trust which has been broken, जो विश्वास उनके बीच में टूट गया है, once again God is going to reunite that. परमेश्वर फिर से इसे स्थापित कर देंगे। That's what the Holy Spirit is doing around the world. यही तो पवित्र आत्मा संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Lord has spoke to me प्रभु ने मुझसे बात किया, that He is going to restore every relationship. उन्होंने कह दिया कि मैं हर एक रिश्तों को पुनर्स्थापित कर दूंगा। Praise the Lord. Praise the Because in the Lord। coming days we are going to see new things. क्योंकि आने वाले दिनों में हम नई चीजों को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। A different level of anointing you are going to एक see. खास स्तर का अभिषेक हम लोग देखेंगे। People are filled in the glory of God. सचमुच लोग परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। Without restoration, God cannot do all those things. जब तक आपके रिश्तों में मधुरता और स्थापना नहीं कर दे, आप अद्भुत चीजों को नहीं देख सकते हैं। Until unless your family are not received salvation, how come you will receive big miracles in your याद family? रखिए मेरे प्रियो, जब तक कि आपके परिवार में उद्धार का कार्य नहीं होगा, आप बड़े बड़े चीजों को कैसे देखिएगा? Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He is working in families. वो सचमुच एक एक परिवारों में कार्य कर रहे I हैं। have seen with my eyes of faith that He is moving in lot of families in Delhi.
मैंने अपने विश्वास की आंखों से ये देखा है कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो हर एक परिवारों में कार्य कर रही है। Praise the Lord. His हालेलुया। presence is entering into each and every family. उनकी उपस्थिति एक एक परिवारों में प्रवेश कर रही है। And that presence has the agenda that He is going to reunite everyone in the name of Jesus. इस उपस्थिति का एक ही उद्देश्य है कि सबको यीशु के नाम से एक कर दे। Hallelujah. हालेलुया। If husband and wife are separated, they are going to be united. अगर पति पत्नी अलग हो गए तो वो एक हो जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Who is going to do that? ये कौन करेगा? By the blood of Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के The blood द्वारा। has the power to bring the presence of God. इसी लहू में वो सामर्थ है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके The आए। blood has the power to bring overflow Holy Spirit. इसी लहू में वो सामर्थ है कि बहुतायत के पवित्र आत्मा को आपके जीवन में लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because the blood has forgiven our sins. हालेलुया। क्योंकि इसी लहू ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And that's why we are having the blood of Jesus on our doorpost. इसी से प्रभु यीशु का जो वो लहू हमारे दरवाजों पर लगा है And the blood is pleading before God. और वही लहू सचमुच परमेश्वर के सामने गुहार करता है, पुकारता है। In these days, इन दिनों में if you have written anything about your relationship in this prayer request, अगर कोई भी रिश्तों के बारे में आपने अपने प्रार्थना निवेदन में अगर लिखा है, I'm not talking about business. मैं यहाँ पे व्यवसाय के विषय में बात नहीं कर I'm रहा, talking about families. मैं ये बात कर रहा हूँ परिवार के विषय में। Maybe you have written about your son. हो सकता है आपने अपने पुत्र के बारे में लिखा Maybe you have होगा, written about your daughter. हो सकता है आपने अपनी बेटी के बारे में लिखा Maybe you होगा, have written about your husband. हो सकता है आपने अपने पति के बारे में लिखा Maybe you होगा, have written about your wife. हो सकता है अपनी पत्नी के बारे में लिखा होगा, Maybe you have written about your relatives हो सकता है अपने रिश्तेदारों के बारे में लिखा होगा, who have gone very far away from your life. वो आपके जीवन से बहुत दूर जा चुके हुए हैं। Maybe they have gone so far that you have no hope that they will come back. वो इतने दूर जा चुके हैं आपसे कि आपको लगता है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. But the blood of Jesus, लेकिन प्रभु यीशु का लहू, it has gone and taken this request to the Holy of Holies. हालेलुया, वो सचमुच आकर इस प्रार्थना निवेदन को उस पवित्र महापवित्र स्थान पर ले गए हैं And it has pleaded before God. और वहां पे जाके वो गुहारते हैं, पुकारते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because He is our high priest. क्योंकि वही हमारा महायाजक है। He is praying for us. वो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना He करता is है। pleading before the throne of वो God. कहता है पिता से पुकार के, The blood is pleading before God. उनका लहू सचमुच पुकारता है परमेश्वर के That सामने। please restore all this relationship. वो कहता है कि हर एक रिश्तों को तू बना दे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The prayers are growing like an incense before the throne of हालेलुया। God. सारे प्रार्थना उस वेदी पे एक अद्भुत सुगंध की तरह मौजूद हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Prayers are reaching to the heaven. सचमुच प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच रहा है। Amen. And आमीन। God is opening the heaven सचमुच परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया है, because He has taken the prayer of the blood of Jesus. क्योंकि उन्होंने इन प्रार्थनाओं को यीशु के लहू के द्वारा ग्रहण किया That's है। why He was hung on the cross. इसी से तो यीशु उस क्रूस पर चढ़ाया गया। And today we have the authority and we can say in pride that we have the blood of Jesus Christ of Nazareth. इसी से उस अधिकार से, उस गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लहू है वो यीशु मसीह का है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That's why we can say in boldness that Christ has died for us. आप सचमुच उस बोलनेस में आप कह सकते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा। Hallelujah. हालेलुया। Though the world has separated the relationship, लेकिन संसार ने रिश्तों को अलग कर दिया है। the devil has separated the relationship. शैतान ने रिश्तों को अलग कर दिया है। Demons have separated the relationship दुष्ट की ताकतों ने रिश्तों को अलग कर दिया by है, bringing envy and jealousy. ताकि आपके जीवन में वो जलन आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Satan made so many plans by separating husband and wife, by destroying the relationship. शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं पति पत्नियों को अलग करके उनके रिश्तों को तोड़ देने के लिए। Amen. आमीन। But लेकिन now the blood of Jesus
अब प्रभु यीशु का लहू is going to reunite it. वो सब रिश्तों को जोड़ देगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the power of the blood of Jesus. यही तो वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु के लहू का। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So the heaven is being opened. सचमुच स्वर्ग खुल गया है। The Lord has told me, प्रभु ने मुझसे कहा है I'm going to open the heaven. मैं स्वर्ग को खोल रहा हूँ। And in the coming days, आने वाले दिनों में everyone is going to see new things. हर लोग अपने जीवन में नई नई चीजों को When I देखेंगे। say everyone, that means all of your whole family. जब मैं Hallelujah. कहता हूँ सब लोग, तो जिसका अर्थ है कि संपूर्ण परिवार। New things is not only for one person in the family. New things is for all in the family. अगर ये बात मैं कहता हूँ कि नई चीजें आपके लिए, तो ये नई चीजें ना सिर्फ आपके लिए वरन समस्त परिवार के जनों के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Because all our curses are broken. क्योंकि हमारे सारे श्राप तोड़े जा चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. All the plans of the enemy have been broken. शैतान के हर एक योजनाएं तोड़ी जा चुकी हैं। Because we are in the time of restoration. सचमुच हम उस समय पे आगे जहाँ हमें पुनरुत्थापित किया जाए। Amen. आमीन। And God says, I'm going to declare new things. और परमेश्वर कहता है मैं नई चीजों की घोषणा करूंगा। And I want to read one scripture. मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। How many of you want to receive new things? कितने लोग चाहते हैं नई चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। In the days to come when God will speak to you, new things will come up. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे नई चीजों के विषय में बात करेंगे। Because the blood has pleaded our request before the throne of हालेलुया। God. क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने जाके गुहार लगाता And है। I apply the blood of Jesus upon each and every GRPC family and who is watching me around the world. और मैं सचमुच यीशु के लहू को एक एक GRPC परिवार के जन के ऊपर लगाता हूँ, और जो लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Bitterness is going. कड़वाहट आपके जीवन से जा रहा है। Bitterness is going in relationship. हर एक रिश्तों में जो कड़वाहट है यीशु के नाम से जा रहा Envy है। in the relationship is going. हर एक जलन की आत्मा रिश्तों में यीशु के नाम से जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah, Praise the Jesus. Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. God has the power to reunite it. हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के ही पास वो सामर्थ्य है कि हर एक रिश्तों को फिर से जोड़ His दे। hand is the power to bring each and every one उनके together. हाथ में वो सामर्थ्य है कि सबको एक कर दें। Say everybody, his hand has the power. आप कहें कि उनके हाथ में वो सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. He has the power to bring all together. उनमें वो सामर्थ्य है, वो सबको एक साथ जोड़ दे। And that is the hand I declare upon your life. और उसी हाथ को मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to receive that? क्या आप तैयार हैं उसे ग्रहण करने के When लिए? you have the blood of Jesus, जब आपके पास प्रभु यीशु का लहू when you है, have given your life to Jesus, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, when you say, Lord, forgive my sins. और जब आप कहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, Oh, forgive my ओ wrongdoings. मेरे हर एक गलत कार्य को क्षमा कर दे। When you are ready to repent for your sins. और जब आप तैयार हो जाते हैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए, Amen. आमीन। And automatically, और the Lord अपने will आप- forgive your sins. और अपने आप प्रभु आपके पापों को क्षमा करते हैं। And thereafter, और फिर उसके बाद the Holy Spirit पवित्र आत्मा will come into your life. आपके जीवन में आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He will bring Jesus into your और life. वो आपके जीवन में मसीह यीशु को लाते हैं। And Jesus will plead your prayer request before the throne. हालेलुया। यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को पिता के सिंहासन के पास ले आके पुकारते हैं। And thereafterwards, और फिर उसके बाद His Father, उनका पिता, our Father, हमारा पिता will answer the prayers. हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, And in every answer, और हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है। Amen. आमीन। We are going to see miracles. सचमुच हम चमत्कारों को देखेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. That is the power of Jesus. यही तो वो सामर्थ्य है मसीह यीशु का। If you believe it, receive it. अगर आप विश्वास करते तो ग्रहण कर लीजिए। Don't give up. बिल्कुल मत हारिए। The Lord Jesus is your answer. सचमुच प्रभु यीशु ही आपके जीवन का उत्तर है। I'm going to read from Isaiah chapter 42 and verse 9. मैं इसी वक्त आपके साथ यशाया नबी उसके 42 अध्याय के 9वें वचन. 9वें वचन की ओर जाऊंगा। The Bible says, Behold, the former things have come to pass, and new things I now declare. Before they spring forth, I tell you of this. देखो, पहले बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुझको सुनाता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन।
आमीन। Before they come into your life, God is announcing you today. इसके पहले कि आपके जीवन में नई बातें आ जाए, प्रभु उसकी घोषणा करके आपको बता रहे हैं। Today He is announcing वो इस बात की घोषणा करके आपको बता रहे that हैं you and your son will have a good relation. ताकि आपके और आपके बेटे में एक अच्छा रिश्ता हो। You and your daughter will have a good relation. आपके और आपकी बेटी के साथ एक अच्छे रिश्ते हो। You will have a good relationship with your father. आपके और आपके पिता के बीच में एक अच्छा रिश्ता हो। You will have a good relationship with your mother. आपके और आपकी माता के बीच में एक अच्छा रिश्ता हो। You will have a good relationship with your boss. आपके जो मालिक हैं उसके साथ आपके एक अच्छे रिश्ते हो। Amen. Hallelujah, Praise Jesus. the Lord. Thank you, Lord. You will have a wonderful relation with your sister or brother. Amen. आपके अच्छे रिश्ते होंगे आपके भाई आपकी बहन के साथ। According to this scripture, इस वचन के the अनुसार Bible says, बाइबल यूं कहती है, Hallelujah. हालेलुया, New things I am going to declare. सचमुच नई बातों की मैं घोषणा करता And when हूँ। the Lord will declare, और जब परमेश्वर घोषणा करेंगे it will happen in your life. वो निश्चय ही आपके जीवन में It will पूर्ण come होके to pass in रहेगा। your life. निश्चय ही पूर्ण होके रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. If you believe, you shall receive. अगर आप विश्वास करते तो ले Say, लीजिए। everybody lift up your hands and just say, Yes, I believe. आप कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ और उसे ग्रहण कर लीजिए। If you are hearing me around the world, by अगर आप message, मुझे सुन रहे हैं संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में, Hallelujah. हालेलुया, No matter what relationship you are having, मुझ- problem in your relationship, कोई चिंता करने का विषय नहीं है ये सोच के कि क्या रिश्ता हमारा अभी खराब है। maybe you are going through some divorce cases, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई हो जिससे आप तलाक की तरफ जा रहे हो, but लेकिन as a man of God, एक परमेश्वर के दास होने under के the anointing नाते of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के I pray अंतर्गत today मैं प्रार्थना करता हूँ इसी that वक्त once again एक बार फिर से God will show you mercy प्रभु आपके जीवन में दया को दिखाएं and He will restore everything. और वो हर एक रिश्तों को एक कर दे। Whatever you have lost it, you are going to receive it. जो कुछ भी आपने खोया है आप पाले। As the church and the Lord Jesus are getting restored, in the same manner your family is going to be restored in the name of जिस Jesus. तरह से कलीसिया और प्रभु यीशु के द्वारा मैं पुनर्स्थापित किया गया, आप भी उसी तरह अपने जीवन में पुनर्स्थापित किए जाएं। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Makashoro Orianda Rama mashaka Sekhe tara mondari Come on, just speak in tongues for a Oh, moment. shokon Pray in the tara Spirit. mandiri Hallelujah. mashandari Let's glorify the Lord. Ola Hallelujah. mashiach tara Now mashendere। let me remind you. मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। This restoration is only for the legal relationship. याद रखिए मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो पुनरुत्थापित करेंगे आपके एक लीगल रिश्ते, यानी जो सचमुच समाज के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा आपको हामी देती है। Amen. हालेलुया। This restoration is not for the illegal things. गलत चीजों के लिए, गलत रिश्तों के लिए कोई भी परमेश्वर का पुनर्स्थापित का कार्य नहीं है। So don't, while you are listening my message and you say you are thinking of something illegal and you start saying, oh pastor said by this is the time of restoration and God is going to help me. No, sorry. No. मेरे प्रियो, आप समझ गए हैं परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। गलत रिश्तों के विषय में ना सोचकर इन वचन को लेके आप उस पे कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर मेरा खरा है और खराई से कार्य करता है। Hallelujah. Glory to Jesus. God will work only in legal things. परमेश्वर जो जायज है और जो व्यवस्था के अनुसार है उसी पे कार्य करते हैं। Hallelujah. Hallelujah, Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. I will pray that you will come out from that. मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं उनसे बाहर निकल आए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I will pray that God will make a way for you. मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सारी परिस्थितियों उसके लिए परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग निकाल दे। Hallelujah. Now listen, I'm preaching in this way. Why? Because I knew my GRPC family is wonderful. I know each and everyone, but because our messages are going in YouTube and in Facebook and all over the world, people are listening my message, so I have to talk in a universal way. हालेलुया। मुझे मालूम है मेरे प्रियो, मेरे जीआरपीसी परिवार के जन, आप बहुत ही अच्छे हैं, परंतु ये संदेश संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए है, क्योंकि जब वो इन वचनों को ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में भी कार्य होता है। Hallelujah. हालेलुया। So that they should not be confused. ताकि वो दूसरी तरह से ना सोच के घूम जाएं। हालेलुया। Amen. Glory to I'm not Jesus। going to give any chance to the devil. Hallelujah. मैं शैतान को कोई मौका नहीं दूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। We are not going to give chance to any demonic power to
to twist the messages. मैं शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कि जो संदेश है उसको घुमा दे और इधर का उधर कर दे। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Because we are talking about marriage, relationship. क्योंकि हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, विवाह के रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। Amen. आमीन। So the Lord is going to give you new things. सचमुच परमेश्वर आपको नई चीजें दें। Amen. आमीन। So that you will have a change in your thinking, a change in your talking, a change in your behavior. इस नई चीजों के द्वारा आपके सोचने के तरीके में, आपके बातचीत करने के तरीके में और आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Are you enjoying? क्या आप सचमुच इस वचन के साथ आनंद में हैं? Now, in this season, इस समय में God is going to restore everything. सचमुच परमेश्वर हर एक टूटे रिश्तों को स्थापित कर देगा। But now in the coming days, परंतु आने वाले दिनों में after restoration, पुनर्स्थापित के you बाद have to be careful. आपको बड़ा सावधान होके चलना Or पड़ेगा। maybe before restoration, हो सकता है पुनर्स्थापित के पहले you have to be very careful. आपको बड़ा सावधान होना पड़ेगा। I told you now that Satan will play a last tactics, you know. मैंने आपको बोला था कि शैतान अपने आखिरी चाल को जरूर चलेगा। Hallelujah. Hallelujah. And he always does that. और वो हमेशा करता है। And the people have no knowledge about it. और लोगों को क्या होता है, इस विषय में ज्ञान नहीं होता। They thought that they are talking like it. उनको लगता है कि अरे अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल है, ये एक आराम सामान्य बात है। सामान्य बात सोच के अपन लोग बड़ा लाइट ले लेते हैं। हालेलुया। Yes, है ना? We take it very light, you know those words. और उन शब्दों को आप इतने आराम से लेते हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। Amen. So let me talk about how the relationship get worst. मुझे पहले आपको ये बताना है कि रिश्ते खराब किस परिस्थितियों में हो जाती हैं। First I will talk about the Lord and the church. पहले तो मैं बात करूंगा प्रभु यीशु और कलीसिया के बारे में। Amen. आमीन। If church is good, Lord will come. हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर कलीसिया सही है, अच्छी है, तो प्रभु यीशु आएंगे। Amen. हालेलुया। When I say church, it means the believers. जब मैं कहता हूँ कलीसिया तो जिसका ये अर्थ है कि आप जो आप विश्वासी लोग हैं। Amen. हालेलुया। If the believers अगर विश्वासी जन will follow these things, इन चीजों को अगर सचमुच यानी उसके पीछे चलते हैं। Amen. हालेलुया। through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, then they will be healthy in spiritual realm. तो वो अपने आत्मिक रूप में बड़े ही स्वस्थ हो जाते हैं। Amen. आमीन। And because they are healthy, और जिसकी वजह से जब वो स्वस्थ हो जाते हैं आत्मिकता में। Amen. आमीन। They get opportunity to meet the Lord Jesus and have mercy and grace and miracles in their life. तो उनको ये अवसर मिलता है कि प्रभु यीशु से मिले और सचमुच उनकी दया, उनके चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। But you know what Satan do? आपको मालूम शैतान क्या करता है? He comes and bring disturbance. और वो आता है और परेशानी, परिस्थिति खराब करने लगता है। His agenda is only to destroy the relationship with the Lord Jesus Christ. उसका एक ही उद्देश्य है जीवन में शैतान का, कि वो किसी भी कीमत में आपका जो एक अच्छा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है उसको खराब कर दे, तोड़ दे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. यही सत्य है। How he does it? वो ये सारी चीजों को कैसे करता है? How many of you want to hear this? कितने लोग इसे सुनना चाहते हैं? Hallelujah. कितने लोग इसे सुन? ओह यस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। And really I'll tell you, I never allow such things in the GRPC, you know. और याद रखिए हमारा जो कलीसिया है, जो प्रभु का भवन है, हम हमारे लोगों को इन सारी चीजों के से बचा के रखना चाहते हैं। Amen. Let us read one verse, you know. एक वचन पढ़ते हैं। Amen. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 16 and verse 28. नीति वचन 16 अध्याय 16 अध्याय के उसके 28 वचन की ओर जाएंगे। Amen. Now the Bible says, बाइबल यूं कहती है, can you please? टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ों को उठाता है हाँ, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में से भी फूट करा देता है।
Amen. Hallelujah. Now let me read this in English. I'm going to take that second one. A gossip can separate close friends. Hallelujah. Amen. Hallelujah. A gossip can separate close friends. बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। कानाफूसी यानी फालतू की जो बातें अगर आप करते हैं तो आप अपने सबसे नजदीक जो प्रिय मित्र हैं उससे दूर हो जाते हैं। Amen. आमीन। Gossip is an instrument which can destroy every relationship. याद रखिए इस तरह की फालतू कानाफूसी बातें हर एक रिश्तों को तोड़ देती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It is very easy to talk. ये बहुत आसान है फालतू की बातें करना। Amen. आमीन। Because our mouth, we have no control on our सही mouth. बात है, लोगों के मनुष्य के जीभ पर कोई तो लगाम है नहीं। Amen. आमीन। It's very easy to talk whatever we want. ये बहुत आसान है, जो कुछ भी फालतू की बकवास करना है करते जाएं। Amen. आमीन। And Satan uses those talks. और शैतान इन्हीं शब्दों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the For Lord। example, when we are in the church, उदाहरण के तौर पर जब हम अपने कलीसिया में होते हैं, if two people are gossiping, अगर दो व्यक्ति फालतू की बकवास की बातें करते हैं, that means through that two people, demons can enter into the house of God. याद रखिए उन दो लोगों के फालतू की बातों के द्वारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। Amen. आमीन। And with that two people also, there can be a disturbance that they can destroy the atmosphere of the presence of God. और ये दो व्यक्ति की इस तरह के बातों के वजह से परमेश्वर की जो उपस्थिति उनके भवन में होती है वो नाश हो जाती है। Amen. आमीन। So that's why we have to be very careful. We should not talk about anyone else. ये इसी से ये बहुत सावधान और सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किसी के भी विषय में कोई बातचीत ना करे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you see something going wrong, अगर आपको ऐसा दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, Amen, आमीन, you start praying. आपको एक ही कार्य करना है, आप उस परिस्थिति को देखकर प्रार्थना कीजिए। Don't become judge and rule over those areas. आप न्याय मत कीजिए और उस स्थान पे ना न्यायाधीश की तरह कार्य मत कीजिए, Because you are not the judge, God is your judge. क्योंकि आप न्यायाधीश नहीं है, स्वयं परमेश्वर ही न्याय करने वाला है। Praise the Lord. आमीन। Ignore such things. और ऐसी परिस्थितियां जब आपको दिखती हैं तो आप उससे निकल जाइए। Praise the Lord. हालेलुया। Satan will allow you to do शैतान आपको उकसाएगा, करो ऐसा, because you know the truth. क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मुझे तो सच्चाई मालूम है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Satan can use this tactic. और शैतान इसी चीज का इस्तेमाल करता है। And it started gossiping. और वो क्या करता है कि वो आप लोगों को, परमेश्वर के लोगों को इस तरह के फालतू बातों में लेके जाता है। Amen. आमीन। You know what happened? आपको मालूम क्या होता है मेरे You प्रियो? start doing that. जब आप ऐसा करने लगते You हैं, start talking it. आप बोलने लगते हैं, You are going away from the presence of God. इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। For example, you are in the church. उदाहरण के तौर पे अगर आप परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, I know that you all are wonderful. मुझे Amen. मालूम है मेरे प्रियो आप बहुत ही प्यारे लोग हैं। Amen. यस। But we have to learn lot of things. लेकिन हमें सीखना है क्योंकि परमेश्वर हमें वचनों से सिखाता है। And are you ready to learn it? आप सीखने के लिए तैयार हैं? Tell me, आप तैयार हैं? Hey, come on. Oh, Be wonderful. open. Be open. Be दिल open. खोल के बोलिए कि तैयार हैं। Be open. Yes, my Lord. Hallelujah. Amen. Yes. Because I'm talking about relationship, okay? क्योंकि यहाँ पे मैं रिश्तों के विषय में बात करूंगा। Amen. For example, उदाहरण के तौर you are पे in the house of God. आप परमेश्वर के भवन में हैं, You heard the word of God. आपने परमेश्वर का वचन सुना, And then you came out. आप बाहर निकल के आए, You met 2-3 friends. दो तीन दोस्तों से मिले, And you start talking. आप बातचीत करना शुरू कर दिए Slowly that talk has started with some few things, and then it started with some different area. और धीरे धीरे वो बातचीत इधर से निकल कर किसी और तरफ चली गई। Amen. हालेलुया। And later on you involved yourself so much that you spoke so many things. उसके बाद आपने अपने आप को इतना ज्यादा उसमें सम्मिलित कर लिया और बहुत ज्यादा ही बोल दिया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। And thereafter और फिर उसके you बाद went to your house. उसके बाद आप अपने घर वापस आए। You know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? Go and check it. If I will allow you one Sunday, please do that and see that what will happen in your house. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ऐसा करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपके घर में क्या होता है।
The moment when you enter your house, जैसे आप अपने घर में घुसेंगे, amen, हालेलुया, you will have a different mind. आपका जो दिमाग है ना वो बिल्कुल अलग होगा, And the person who is there in your house, he will have a different mind. और जो दूसरा व्यक्ति मौजूद है आपके घर में उसका एक अलग दिमाग होगा। And there afterwards, उसके बाद क्या? there will be a fighting. उसके बाद लड़ाई शुरू। Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. See how the devil has entered. देखिए किस तरह से शैतान आपके जीवन में, आपके घरों में प्रवेश कर जाता And है। there afterward you say, उसके बाद आप कहते हैं, Pastor ji, प्रभु के दास, please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। I came to the house. मैं घर में आया, I was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था, Hallelujah. But suddenly in the night there is a war in my house. और अचानक से रात में क्या हो गया? युद्ध हो गया। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Wave your hands, please, please. Yes, Lord is touching. Lord is blessing His people. Amen. आमीन। It is happening because the devil has taken your relationship with the Lord in his control. ये इसलिए ऐसा होता है कि शैतान ने आपके रिश्तों को अपने हाथ में नियंत्रण करके रख लिया। Hallelujah. हालेलुया। So, do not gossip. इसलिए आपको ये सीखना है कि फालतू की बातें में बिल्कुल ना पड़े। I can use that Hindi word चुगली करना. चुगली, यस, Yes, yes, that is शिकायत करना, चुगली फालतू की बातें चुगली, करना, चुगली। निंदा करना। You know, these are the areas where the devil uses to disturb the relationship of the house. यही एक जो क्षेत्र है जिसमें शैतान बहुत बड़ा कार्य करता है, घर में रिश्तों को तोड़ देता है। Between husband wife, पति पत्नी के बीच में, between son बेटा और बेटियों के बीच में. बेटियों के बीच में, Hallelujah. परिवार के जनों के बीच में। For example, you are talking somebody's son. You're talking against somebody's son, and उदाहरण के तौर पे आप किसी दूसरे के बेटे के विषय के खिलाफ बात करते हैं। don't do that. मत कीजिए। Don't talk against any किसी daughter. के किसी भी बेटे, किसी भी बेटी के खिलाफ, किसी भी परिवार के लोगों के खिलाफ, किसी भी जन के खिलाफ आप मत बात कीजिए। You know why? आपको मालूम क्यों? Because Bible says when you see something going wrong, you must pray. That's all. क्योंकि बाइबल एक ही बात कहती है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उस गलत के समय आपको प्रार्थना करना है। Amen. हालेलुया। Now, how many of you want to understand what I am doing? आप में से कितने लोग समझना चाहते हैं कि मैं एक प्रभु का दास होने के नाते मैं क्या करता हूँ? Amen. Now listen. There are so many things which are written here. आपको मालूम इन प्रार्थना निवेदनों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, You have already opened your heart. क्योंकि आपने अपना हृदय खोल दिया है। Amen. आमीन। It is there. ये लिखा है। Okay. आमीन। Now, if I will start talking about these words to different people, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा कि इन बातों को जानकर और मैं उन व्यक्तियों के बारे में दूसरे लोगों से बात करना अगर शुरू कर दूं, if I say to call up some people, अरे आपको पता है उसके घर में ये है, उसके घर में वो है, so what will happen? हालेलुया। You know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? You know what will happen? आपको मालूम क्या होगा मेरे प्रियो? Hallelujah. मैंने यहाँ बोला और शाम को मेरा और रितु का झगड़ा हुआ. This is a fact. जब Why? आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपके रिश्ते में दरार हो जाती है। Yes. हालेलुया। यहाँ मैंने बोला और 2 दिन के बाद में मैं देखूंगा मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा. हालेलुया। As a man of God, I am telling you. एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। Praise the Lord. कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं आप इन कितने बातों लोग को? समझ रहे हैं? हालेलुया। That's why I never tell anyone. इसी से परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि किसी की भी जो बातें हैं वो सिर्फ मेरे उस वेदी और सिंहासन पे जाए। And if I see something wrong, और अगर मैं देखता हूँ किसी के जीवन में कुछ गलत और खराब I है, will tell just pray. मैं अपने आप को कहूंगा या अपने खास लोगों को प्रार्थना कीजिए। That's all. बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। Let's not judge. मैं बिल्कुल न्याय नहीं करता, Because through judgments, gossip spirit can come and enter into our life.
क्योंकि अगर आप न्याय करते हैं तो सचमुच फालतू की बातें, निंदा की बातें करने वाली आत्मा आती है और वो सचमुच हर एक चीज Now that goes to the innermost being. और वो बहुत अंदर तक चली जाती है। Amen. Can you read Proverbs chapter 18 and verse 8? Please take it out. आइए मेरे साथ नीति वचन उसके 18 अध्याय के 18 वचन की ओर चलते हैं, जो यूं कहती है, The words of gossip are like choice morsel. They go down to the innermost. हालेलुया। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, हाँ। वे पेट में पच जाते हैं। Praise the Lord. हाँ, ग्लोरी टू बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। बात सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि है। अच्छा स्पाइसेस है, मसाले अच्छे डाले गए हैं। Amen. ग्लोरी टू जीसस। पर आपकी आत्मिकता के लिए वो हानिकारक कारक है। है। Amen. You सारे have लोग to बोले protect yourself. Praise the Lord. Glory to Jesus. आज से आप अपना निर्णय लीजिए। Take a decision. ये एक समय है, अब आप अपने जीवन में एक निर्णय ले Take a लीजिए। decision. बिल्कुल निर्णय ले लीजिए, Take a decision. ले लीजिए And निर्णय। teach your family अपने also. परिवार के जनों को भी सिखाइए, Teach your sons and अपने daughters बच्चों को सिखाइए। that we are not going to involve in this area. इस क्षेत्र में किसी की भी बुराई करने में, निंदा करने में, कानाफूसी करने में, चुगली करने में हम नहीं पड़ेंगे। Amen. आमीन। You know why? आपको मालूम क्यों? Why? आपको मालूम क्यों? Because we are the branches. क्योंकि हम वो जो डालियां हैं, Amen. हालेलुया, And He is the true vine. और यीशु मसीह हमारा सच्चा दाख रस है, And I want to be fruitful. और हमें अपने जीवन में फलवंत होना है। Amen. आमीन। And if we enter into gossip, और अगर हम इस तरह की फालतू बातों में पड़ेंगे, you know what happens? आपको मालूम क्या होगा? We will become unfruitful. याद रखिए, आपके जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा। Amen. हालेलुया। You know what God will do? आपको मालूम फिर परमेश्वर क्या करेंगे? He will take axe and He will cut that tree. और वो क्या करेंगे? वो सचमुच उस कुल्हाड़ी को लेके उस पेड़ को काट देंगे। Amen. When people involve themselves in all these areas, जब लोग अपने आप को इन सारे क्षेत्रों में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। now one more thing. एक और चीज सुनिए मेरे प्रियो, No discussions, कोई बैठ के बहसबाजी नहीं, no arguments. कोई भी फालतू की बकवास नहीं। Amen. आमीन। No discussion. बिल्कुल मत कीजिए। All these discussions will lead. You thought that with the discussion we will come into a plan or we will come into something else. No. आप इस बात को समझिए, आपको लगता है कि हम बातचीत करेंगे या थोड़ा बहस करेंगे तो एक निर्णय पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। Amen. ऐसा नहीं Hallelujah. है। ट्रैप हो जाते हैं। That is a trap. ये यहाँ पे बहुत बड़ा आपको फंसाने का एक जरिया है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. If you involve yourself for an hour for discussion, Holy Spirit will never help you. याद रखिए, अगर 1-2 घंटे इस तरह के बहसबाजी में आप आ जाएंगे तो पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. See, you are coming for a discussion so that something will come out and you want to solve it out, but it never happened. Let God will do it. एक आदत Hallelujah. बना लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे इस तरह के बातचीत से एक निर्णय निकल आएगा, परंतु नहीं, आप परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करके आपको निकाल दे। Pray. हालेलुया। प्रार्थना The कीजिए। best answer is to pray. एक ही उपाय है आपके पास, चुपचाप प्रार्थना कीजिए। Everybody wave your hands and say, I will pray. आप कहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा। I will pray. आप कहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा। Whatever my eyes will see, for that I will pray. जो भी मेरी आंखें गलत भी देखती तब भी मैं प्रार्थना करूंगा। Amen. आमीन। That's what I do. वही प्रभु के दास करते हैं और That's मैं what भी I do. करती हूँ। I too. That's why I do. हालेलुया। I see lot of things, and I said, it's better to pray. मैं बहुत सारी चीजों को देखता हूँ और मैं यही निर्णय करता हूँ कि हर बातों छोड़ो, चुपचाप चलो, प्रार्थना करते। Sometimes I get hurt also, मुझे कई बार तकलीफ होता है, दर्द भी होता है, but I take it lightly. मैं उसको बहुत आराम से लेता हूँ And there afterwards, और फिर उसके बाद I start praying. मैं प्रार्थना करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now see, when you come into unfruitfulness, इससे क्या होता है कि जब आप अपने जीवन में फलवंत नहीं होते हैं, you come under judgment. आप न्याय में पड़ जाते हैं। And then you have to wait for another season. फिर आपका जो आशीष का जो मौसम होता है वो निकल जाता है, आपको दूसरे मौसम के लिए रुकना पड़ता है। Then
that's how you waste your time. और जिसके कारण आपकी आशीष और आपका समय बर्बाद हो जाता है। Yes, of course you believe in the Lord ये Jesus, सत्य है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, but every miracle are based on your protection. याद रखिए हर एक जो चमत्कार है आपके द्वारा निकले गए अच्छे बातों के द्वारा ही है निर्धारित। How much crop is there in your land? आपके उस आत्मिक जमीन में वो कितना फसल निकल के उपज आता है, How much harvest you had it? कितना आपके पास वो फसल है जो आपके पास है, Amen. उसी पे ये निर्भर होता है। Our miracle is based on harvesting. याद रखिए आपके चमत्कार आपके आत्मिक जीवन के उस फसल और उस कटनी के ऊपर आधारित होता Praise the है। Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। This is the one area, and the another area is also the slander. एक तो ये क्षेत्र है और दूसरा है ये कि निंदा करना। You know, when you enter into gossip, जब आप इस तरह के फालतू की बातचीत में पड़ते हैं, so what happens? आपको मालूम क्या होता It है? goes to deeper, वो आपके शरीर और आत्मा के अंदर प्रवेश करने लगता है and there और afterwards फिर उसके बाद you are upset, फिर आप निराश हो जाते हैं, you are disappointed, आपको बहुत दुख होने लगता you है, are discouraged, आपको लगता है कि अब जीवन का सारा प्रोत्साहन खत्म, and there afterwards और फिर उसके बाद you started slandering. और उसके बाद आप क्या करते हैं? निंदा करना शुरू कर देते हैं, Amen. बुराई करना शुरू कर देते हैं। Yes. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So keep yourself away from all these things. इस तरह की चीजों से, फालतू की बातचीत से, इस तरह की निंदा से अपने आप को बचा लीजिए। Amen. आमीन। There will be people who will be talking against you. लोग होंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे, But what you will do? परंतु आप क्या करेंगे? You will pray. आप चुपचाप प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, let me read that also. मुझे पढ़ने दीजिए। Proverbs chapter 24 and verse 29. नीति वचन उसका 24 अध्याय का 29 वचन की ओर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, इस बार पुलाव के साथ में हम आपको अच्छी अच्छी मिर्ची भी दे रहे हैं। हालेलुया, Amen. Ha- हालेलुया। Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you enjoying or not? Please. क्या आप सीख रहे हैं कि नहीं इस वचन से? You know why I'm preparing you. मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। I know that you are a very wonderful person. मुझे मालूम है आप सब बहुत ही अच्छे मेरे परिवार के जन हैं। That's why we are hearing wonderful word of God. इसी से हम लोग सुंदर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। We are very wonderful people. That's why we are carrying the presence of God. हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात इस बात को साबित करती है कि हम बहुत ही अच्छे जन हैं, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेके चल रहे That's हैं। why whoever come into GRPC family, they see new things. हालेलुया। इसी से GRPC परिवार में जो भी नए लोग आते हैं वो नई चीजों को देखते हैं। They see the glory of God. वो सचमुच परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। They see the beauty of वो God. परमेश्वर की सुंदरता को देखते हैं। Why? क्यों देखते हैं? Because we are not indulged in these activities. क्योंकि इन सब चीजों में फालतू की बातें, निंदा, गॉसिप में नहीं पड़ते हम। Amen. आमीन। And we never allow GRPC family to go into this. और हम अपने लोगों को भी बचाते हैं कि इन सब चीजों में ना प्रवेश करें। Amen. आमीन। It's not our job. ये हमारा कार्य नहीं है। Because it will stop the overflow of the Holy Spirit. याद रखिए, जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुतायत से बहना चाहता है उसको वो रोक सकता है। Amen. आमीन। Now what happens when somebody slanders you? क्या होता है जब कोई आपका निंदा करता है? Amen. Now I'm going to read that Proverbs chapter 24 and verse 29. हालेलुया। नीति वचन उसके 24 अध्याय के 29 वचन की ओर जाएंगे। Do not say, I will do to them as they have came to me. I will pay them back for what they have did. हालेलुया। मत कह, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनिए, मत कह हाँ. जैसा उसने मेरे साथ किया हाँ. वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा हाँ. और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। डोंट से दैट। Don't say that. उसने मेरे साथ ये किया, मैं भी इसके साथ करूंगा। Don't say that. डोंट से दैट। Hallelujah. हालेलुया Praise the जीसस। Lord. हालेलुया। ये सारी चीजें क्या करती हैं? हालेलुया। आपके खेतों को नुकसान पहुंचाती है। आपकी जो आत्मिक खेत है, जो अच्छी फसल है, अच्छी उपज है, उसको वो नाश कर देती है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? यस,
We are understanding and receiving. Oh, wonderful. Glory to Jesus. Wonderful. Glory to Jesus. Our whole family is going to be restored. हमारा संपूर्ण परिवार फिर से स्थापित किया जाएगा, God is giving opportunities. क्योंकि परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं। See, you know why we are preaching this? आपको मालूम हम ये क्यों प्रचार कर रहे हैं? So, because the Lord is going to restore every family. क्योंकि परमेश्वर हर एक परिवार में, हर एक परिवारों में वहाँ पे पुनर्स्थापित करेंगे। And, और but, लेकिन Satan is not happy. शैतान तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। And Satan will come in this way. और शैतान क्या करेगा? इसी निंदा, फालतू की बातों के द्वारा प्रवेश करने की To कोशिश करेगा, destroy once again our relationship. और फिर से हमारे रिश्तों को नाश करने के लिए, Destroying husband-wife relationship. पति पत्नी के रिश्तों को नाश करने के लिए। Hallelujah. हालेलूया। But this time, लेकिन इस बार we are not going to give him a chance. हम बिल्कुल भी शैतान को कोई भी मौका नहीं देंगे। Hallelujah. हालेलूया, जीसस। Praise the Lord. ग्लोरी, We are not going to ग्लोरी। give chance. हम बिल्कुल इस शैतान को मौका नहीं देंगे। Hallelujah. हालेलूया। We are not going to gossip, बिल्कुल भी फालतू का बकवास, नो निंदा, नो slandering, nothing. बिल्कुल नो चुगली, नो बकवास की बातें। For everything we are going to pray. और हर एक चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Amen. ग्लोरी टू जीसस। Number 2, दूसरी बात, you must give your body to the Holy Spirit. ये बहुत जरूरी है, जो आपका शरीर है आपको पवित्र आत्मा को देना है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, according to 1 Corinthians chapter 6 and verse 19, पहले कुरिन्थियन उसके 6 अध्याय के 19वें वचन में, don't you know that your body is the temple of the Holy हालेलूया, Spirit? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? Hallelujah. ग्लोरी टू Say जीसस। everybody, my body is the temple of the Holy आप Spirit. कहें कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. हालेलूया। Hallelujah. Hallelujah. Say everybody, my body is the temple of the Holy Spirit. कहें आप अपने मुख से कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। What happens when you give your body to the Holy क्या Spirit? होता है जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा को देते हैं? It will allow you to pray. वो आपको तैयार करता है प्रार्थना करने के Your लिए। body will be taken under the power of the Holy Spirit. आपके शरीर पे नियंत्रण कर लेता है पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के द्वारा। Amen. आमीन। And thereafter he will pray. और पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करता है। Amen. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। If I will slander और अगर मैं किसी का निंदा करता हूँ, and if I will do all those gossiping, और यही मैं फालतू का बकवास अगर मैं करता हूँ, Holy Spirit will never enter into my body. याद रखिए पवित्र आत्मा मेरे शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। नहीं करेगा. नहीं करेगा, He will never. कभी नहीं। He can stand by my side, no problem. वो मेरे बगल में खड़े हो सकते हैं। Amen. हालेलुया। But he cannot enter into my body. परंतु वो मेरे शरीर में जो निंदा करती है उसमें प्रवेश नहीं करेगा। Because क्योंकि Holy Spirit is a Holy Spirit. क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा I है। have to clean everything and then I have to invite it. क्योंकि मुझे सब कुछ साफ करके तभी तो उनको आमंत्रण करना है। And that's what the blood of Jesus और does. यही तो प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में करता है। Hallelujah. आमीन। I have received the Holy Spirit. इससे से तो मैंने पवित्र आत्मा पाया है, And I know the importance of the Holy और मुझे Spirit. मालूम है पवित्र आत्मा का क्या महत्व है। And I will never allow these things to happen. और मैं कभी भी आज्ञा नहीं दूंगा इन सारी चीजों को मेरे जीवन में होने के लिए, Because I can lose the Holy Spirit. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को खो सकता हूँ। Amen. आमीन। And if Holy Spirit is not there in my life, और अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है, what will happen? क्या होगा? I will be not fruitful. मैं बिल्कुल भी फलवंत नहीं। For years and years I will be there in the same page. एक ही तरह के जीवन में वर्षों तक मैं पड़ा रह जाऊंगा। Same. उसी तरह का सड़ा जीवन, Same story. वो एक ही तरह की कहानी, Same food. एक ही तरह का अनाज, Same house. एक ही तरह का घर, Same dresses. सब कुछ एक ही तरह का, No growth. कोई बढ़ोतरी नहीं। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों मेरे Because we are not fruitful. क्योंकि हम फलवंत जो नहीं हैं। There is some problem in our spiritual realms. इसको समझना जरूरी है कि कोई परेशानी तो है हमारे आत्मिक जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। There is something wrong. कुछ तो गलत है We have to check ourselves. और हमें इसे देखना बहुत जरूरी है। We have to check each and everything. जरूरी है जांच करना अपने आप को। Where I am losing. कहाँ से मेरी आशीष जा रही है? Where I am losing. कहाँ से मेरी आशीषें जा रही हैं? There are certain areas you don't know. कई बार आप कुछ चीजें करते हैं, आपको मालूम नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। Hallelujah. You thought that I was doing right. आपको लगता है मैं तो सही कर रहा हूँ,
लेकिन before the kingdom of God, परमेश्वर के इस राज्य के सामने they all are wrong. वो सब गलत चीजें हैं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Before the spiritual realms, आत्मिक जीवन के सामने those all the things are ये wrong. सारी चीजें गलत हैं। Now what we have to do? क्या करना है We हमें? have to repent हमें पश्चाताप करना and है allow the Lord Jesus और आज्ञा देना है प्रभु यीशु को cleanse us. कि मुझे साफ कर दो, And I want to change myself. मुझे अपने आप को बदलना And है, I want to be a new person. मुझे एक नया व्यक्ति बनना है And I want to keep myself away from this. और मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल अलग रहना है। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। I want to read one more verse. एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ। Romans chapter 12 and verse 1 and 2. ओह ब्यूटीफुल। रोमियो 12वें अध्याय के उसके पहले और दूसरे वचन की ओर जाएंगे। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Say everybody, I have offered my body आप कहिए कि मैंने मेरा शरीर दे दिया है as a living sacrifice. एक जीवित बलिदान की तरह। Amen. आमीन। As a living sacrifice, एक जीवित बलिदान की तरह, so that pleasing to God, ताकि मेरा जीवन परमेश्वर के सामने सचमुच प्रशंसा के योग्य हो, so that my body ताकि मेरा शरीर will be available to worship God. वो पूरी तरह से तैयार और मौजूद रहे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Amen. आमीन। So that God will dwell in my body. ताकि परमेश्वर मेरे शरीर में मौजूद रहे। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया जीसस। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Let me tell you one thing. मुझे आपको एक बात बताना है। Lot of families are going to receive salvation मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे परिवार में उद्धार के बड़े कार्य होंगे, because the Lord has spoke to me. क्योंकि प्रभु ने मुझसे कह दिया है। Then the whole world. पूरे संसार में। That's why I'm preaching in such a manner so that the whole people in the around the world are going to Hallelujah. hear this message. ताकि इस संदेश के द्वारा संपूर्ण विश्व में लोग इन संदेश को सुनकर उस आशीष को पालें। Hallelujah. आमीन। When people are going to meet in the church, ताकि जब लोग अपनी कलीसिया में मिलें, hallelujah, हालेलुया, they will be with their families. ताकि वो अपने परिवारों के साथ परमेश्वर के They भवन में will be with मौजूद their हो, relatives. वो अपने रिश्तेदारों के साथ परमेश्वर के भवन में मौजूद हो। Many families are going to come. बहुत सारे परिवार आएंगे। Amen. आमीन। Your whole family will be in the house. आपका संपूर्ण परिवार परमेश्वर के भवन में Your मौजूद son will be होगा। in the house. आपका पुत्र भवन में मौजूद Your होगा। daughter will be in the आपकी house. पुत्री आपके परमेश्वर के भवन में मौजूद होगी। Your son and daughters would have received the salvation. आपके बेटे और बेटी को सचमुच उद्धार मिलेगा। Amen. आमीन। Amen. थैंक यू जीसस। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आनंद मनाए, Amen. आनंद मनाए। Now see, थैंक यू लॉर्ड। I knew that in the coming days, every families will be in the house of God. मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में हर एक परिवार के जन परमेश्वर के भवन में मौजूद होंगे। Yes. हालेलुया, ये सत्य है। If your husband has not received salvation, अभी तक अगर आपके पति ने सचमुच उद्धार को नहीं पाया है, God is making a way. परमेश्वर उस मार्ग को तैयार कर रहा If है। your wife has not received the अगर salvation, आपकी पत्नी ने उस उद्धार को नहीं पाया है, God is making a way. परमेश्वर उस मार्ग को तैयार If कर रहा your है। daughter or son has not received, हालेलुया, अगर आपके बेटे और बेटी ने सचमुच उद्धार को नहीं पाया है, Amen. तो उसके लिए मार्ग को तैयार कर Yes, रहे हैं। God is making a way. वो सचमुच उस मार्गों को तैयार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Because your prayers have been going to answer. क्योंकि आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिल के रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। That is what in these days the Lord is doing. यही तो प्रभु कर रहे हैं इन दिनों। The Lord is coming. प्रभु आ रहे हैं। Yes. हालेलुया, The Lord is coming to the church. सचमुच प्रभु कलीसिया में आ रहे हैं। He is coming. वो आ रहे हैं। And before He's coming, उनके आने से पहले He's cleansing the वो church. हर एक अपनी कलीसिया की साफ सफाई कर रहे हैं।
He's cleansing the believer's life. वो अपने विश्वासियों के जीवन में साफ सफाई कर रहे हैं, That's why when you are praying in these days, ताकि जब इन दिनों आप प्रार्थना करें, you are in the lockdown क्योंकि आप बंद के समय में मौजूद हैं, and you are praying, आप प्रार्थना कर रहे you हैं, are getting cleansed, आप साफ हो रहे हैं, you are hearing the word. आप वचनों को सुन रहे हैं, Through the word you are cleansed, ताकि आप वचनों के द्वारा साफ किए जाएं and you will be prepared. और आप तैयार किए जाएं। You will be prepared like a bride. सचमुच एक दुल्हन की नाई आप तैयार किए जाएं। Amen. And when the आमीन। gates of the church will be open, ताकि जब सचमुच कलीसिया का वो द्वार खुल जाए, you will come like a bride. आप एक दुल्हन के समान प्रवेश करें। Hallelujah. हालेलुया And then people will जीसस। see you. और जब लोग आपको देखे Oh, they will say, wow, what a wonderful person you और are. आपको देख के बोले कि वाह, आप कितने सुंदर और अद्भुत व्यक्ति हैं। Amen. ग्लोरी टू जीसस। Amen. हालेलुया। And the day when you will enter, और जिस दिन आप प्रवेश करेंगे, the people who were against you, वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे, while seeing your beauty, आपकी सुंदरता को they देखकर will come back to you. वो आपके पास वापस आ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। From where you got this favor? और आपसे आके पूछेंगे कि ये कृपा तुझे कहाँ से मिली? Oh no, my brother, this is not a favor. तब आप कह दीजिएगा, ये कोई कृपा नहीं है, Hallelujah. It's not a favor. ये कृपा नहीं है, It is the God's word fulfilled in my life. ये तो परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे जीवन में पूर्ण हो गया है। God says, I will restore you, and He has done it. क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा, तो उसने कर दिया। Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is not by somebody's prayer, ये मत सोचिए कि किसी की प्रार्थना के द्वारा, but it is by the prayer of Jesus ये Christ. सिर्फ प्रभु यीशु के प्रार्थना के Because द्वारा, my Jesus is praying. क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए प्रार्थना करता है। He's praying at the throne of वो God. सचमुच परमेश्वर के सिंहासन के पास प्रार्थना करता He's है। pleading before God. वो मेरे पिता के सामने सचमुच दिन रात दुहार करता है। And I know in this lockdown, और मुझे मालूम है इस बंद के समय Lord Jesus प्रभु यीशु is praying before the Father. वो सचमुच पिता के सामने प्रार्थना करता He's है। pleading before the Father वो मेरे लिए प्रार्थना करता है पिता के सामने। that I have already paid the blood for this church. वो उन्हें याद दिलाते कि इस कलीसिया के लिए मैंने पहले ही अपने लहू को देकर दाम चुका दिया है। I have already suffered. मैंने पहले ही दुख उठा लिया है। I have already given my pain. मैंने अपने दर्दों को पहले ही दे दिया है। I have already took all their sorrows. मैंने पहले ही उनके दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। So let they should not be troubled. Let them give everything what they are asking. सचमुच पिता, उन्हें अब और दुख नहीं, उन्हें दे दीजिए जो कुछ भी वो मांग रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Father moved in और compassion. पिता सचमुच तरस से भर जाते हैं And He sent His Holy Spirit. और अपने पवित्र आत्मा को भेजते हैं। Amen. आमीन। Intervening in everybody's हर life. एक के जीवन में हस्तक्षेप करने के In लिए, every family. हर एक परिवारों में, In every children. हर एक बच्चों के जीवन Those who में, have not received salvation, they shall जिन्होंने receive. अभी तक सचमुच उद्धार को नहीं पाया है, They shall receive वो it. निश्चय ही अपने उद्धार को They पाएंगे। shall receive वो it. निश्चय ही उद्धार को Hallelujah. हालेलुया। That's why the Holy Spirit is coming in so supernatural way. इसी से पवित्र आत्मा बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रीति से आ रही है। Hallelujah. To restore everything. हर एक चीजों को ठीक करने के लिए, To restore everything. हर एक चीजों को बना देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। When restoration comes, जब सचमुच पुनरुत्थापित किया जाता who है, is going to be ये glorified? कौन, किसे महिमा मिलती है? Only our Lord Jesus will be सिर्फ glorified. प्रभु यीशु को महिमा मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When our Lord Jesus will be glorified in the earth, याद रखिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर महिमा मिलती है, and all the church around the world will glorify, जब संपूर्ण कलीसिया इस पृथ्वी पे उन्हें महिमा देती है, what will happen? आपको मालूम क्या होता है? In the kingdom of heaven, परमेश्वर के उस स्वर्ग में, before the angels, उस राज्य में, स्वर्गदूतों के सामने, my God who is King of kings, मेरा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, my God who is Lord of lords, जो प्रभुओं का प्रभु है, hallelujah, हालेलुया, whose name is Word of God, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन, hallelujah, who is Hallelujah. faithful one and who is righteous one, जो सचमुच विश्वास के योग्य और धर्मी है, before the angels, स्वर्गदूतों के सामने he will be glorified. उनको महिमा मिलेगी। Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। Because of the Son of living God. क्योंकि सचमुच उस जीवित परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, Because of his son Jesus. क्योंकि उनके पुत्र यीशु के द्वारा Every angels bow before God. हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं। Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया, Hallelujah. हालेलूया। The Son of God, when he was there in the world, परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में था, while he was hung on the cross, जब वो उस क्रूस पर लटका था, he was forgiving the sins of the वो world. एक एक करके लोगों के पापों को क्षमा करता जा रहा था। Amen. आमीन, Amen. आमीन। He was forgiving. वो सबको क्षमा कर रहा था। Why? क्यों? So that we all will be glorified in this earth. ताकि हम सबको इस पृथ्वी पर महिमा मिले। हालेलुया। When we will meet our friends, we will be glorified. ताकि जब हम अपने दोस्तों और मित्रों से मिलें तो हमें महिमा मिले। And when we tell about the Lord Jesus, और जब हम कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में, our Lord will be glorified. सचमुच हमारे प्रभु को महिमा मिलती है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। How good and awesome God we are serving. सचमुच कितना अच्छा और कितना अद्भुत प्यारा प्रभु यीशु है The हमारा। Holy Spirit is moving to restore each and everybody's सचमुच relationship. पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से आपके जीवन में कार्य कर रही है ताकि एक एक रिश्तों को वो बना दे। But be careful लेकिन बड़े सावधानी से चलिए। as the restoration is coming. जिस तरह से आपके परिवार में सब चीज को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, Don't allow your mouth अपने मुख को बिल्कुल भी आज्ञा ना दें to go into gossips. किसी भी तरह की फालतू बातों में पड़ने के लिए। Don't allow your mouth for any slandering. किसी भी निंदा में अपने जीव को आज्ञा ना दें And don't talk too much. और बहुत ज्यादा भी बात ना करें। Why? Because आपको मालूम क्यों? the Bible says क्योंकि बाइबल यूं कहती है, it is not my advice. ये मेरा कोई आपको सलाह नहीं है। Amen. आमीन। And even यहाँ तक कि the Bible says बाइबल कहती है, avoid anyone who talk too much. ये बात ध्यान रखिए, उस व्यक्ति से आप दूर रहिए जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। It is written in Proverbs chapter 20 and verse 19. जो सचमुच नीति वचन उसके 20 अध्याय के 9 वचन में इस बात का वर्णन 19 है। वचन में हालेलुया। Those who talk too much, avoid them. जो बहुत ज्यादा बात करते हैं उनसे दूर रहे। I can see a lot of people are smiling, you know. Glory to Jesus. Many. Many. All. Those who talk too much, Glory to Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. for helping your people. You know, sometimes what happens? आपको मालूम कई बार क्या होता People है? hear somebody's story and get attacked. क्या होता है, लोग दूसरे की कहानी को सुनते हैं और अपने आप में ही उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है। So don't listen all those stories. इसी से दूसरों की कहानियों को कृपया करके ना सुने। Amen. आमीन। Yes. You know what type of story you must hear? आपको मालूम कैसी कहानियों को सुने? What is going to come? क्या होने वाला है? Don't go back. पीछे मत जाएं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't start it. You know, when people started talking, they talk about all 10 years back stories or 2 years back, 3 years back. I don't know. पिछली बातों को ना करें, 10 साल पुरानी, 2 वर्ष पुरानी, अरे भविष्य के विषय में बात करें। Amen. आमीन। Say, I'm going to receive my miracle. आप कह दीजिए कि मैं अपने चमत्कार को हासिल करने जा रहा हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. Thank you, thank you, thank you. Complete restoration. संपूर्ण रीति से आपको परिवार सहित पुनर्स्थापित करेगा मेरा प्रभु। Praise the Lord. Glory to Jesus. If you want to tell your story, I am ready to hear. No problem. मैं तैयार हूँ आपकी कहानियों को सुनने के लिए, Because I take your story and I give it to the Lord. क्योंकि मैं जब आपकी कहानियों को सुनता हूँ तो मैं प्रभु को जाके दे देता हूँ। Amen. I हालेलुया। never keep with me. मैं अपने पास नहीं रखता। Amen. Because I know Hallelujah. that it is not good to keep all those stories in my pocket. You know? क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी सारी कहानियों को मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता, मैं And प्रभु को दे whenever देता I हूँ। counsel them the coming days what is going to happen. और जब मैं उन्हें सलाह देता हूँ तो मैं उनको उनके भविष्य के विषय में बताता हूँ कि उसके विषय में तू अपना ध्यान लगा। Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Let us focus on to the things which are going to come.
उन चीजों पे अपने ध्यान को केंद्रित करिए जो भविष्य में आने जा रही है। ग्लोरी टू जीसस। You are running a race. आप एक दौड़ में हैं, So you let your eyes will be in the front. इसलिए अपने आंख को संपूर्ण रीति से आगे सामने की ओर लगाइए। Don't look back. पीछे मत देखिए, Who is coming? पीछे मत देखिए कौन आ रहा है, Who is going? ये मत देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। Amen. हालेलुया। Just focus. बिल्कुल आपने आंख को आगे की ओर केंद्रित कीजिए। Focus your destiny. आपका जो भविष्य जो रखा गया है उसकी ओर लगाइए। Praise Lord. हालेलुया। And run. और दौड़िए, Run. विश्वास की दौड़ Maybe you are दौड़िए। so weak to run, but run. Holy Spirit will help you. आप दौड़िए, आपको लगता है आप कमजोर हैं, परंतु पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। I have seen many families are coming. मैंने देखा है बहुत परिवार आ रहे हैं। Amen. Amen. I'm talking about your families. मैं आपके परिवारों के विषय में बात कर रहा हूँ। I'm talking about your children. मैं आपके बच्चों के विषय में बात I'm कर रहा talking हूँ। about your मैं husband. आपके पतियों के विषय में बात कर रहा Wife. हूँ, पत्नियों के विषय में बात कर रहा Everyone. हूँ, हर एक लोगों के विषय Because में, we are in a time of restoration. क्योंकि हम उस समय में आ चुके हैं जहाँ हम पुनर्स्थापित किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। In the first phase we saw resurrection. In the second phase we are seeing restoration. पहले चरण के स्तर पे हमने देखा पुनरुत्थान और दूसरे चरण में हमने देखा पुनर्स्थापित। Hallelujah. Hallelujah, Once again, Jesus. me and my family will serve the Lord. एक बार फिर से मैं और मेरा परिवार सचमुच परमेश्वर की सेवा करेगा। Hallelujah. Say Glory. everybody. आप me- कहिए, me मैं और and मेरा the- परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। Come on, speak from अरे me. बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, Come on, say. अपने हाथों को उठा के इस बात की me घोषणा and my कीजिए। family will serve the Lord. आप कहिए कि मैं और मेरा परिवार संपूर्ण घराना परमेश्वर की सेवा करेगा।